Okay, so we are Real Learning. Our platform is study.reallearning.in. What we are trying to do is make sure that blended learning is made possible through our platform. By blended learning, of course, what we mean is that जब schools शायद एक दो महीने में start हो जाए and some students start joining the classes and some are probably sitting at home और ऑफलाइन और ऑनलाइन लर्निंग के बीच में काफ़ी एक गैप बन जाएगा जिससे टीचर्स वुड बी टीचिंग द स्टूडेंट्स सो दैट गैप इज व्हाट समथिंग वी आर ट्राइंग टू ब्रिज मेकिंग श्योर कि भले ही ऑफलाइन या ऑनलाइन असेसमेंट्स हो हर तरीके के असेसमेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म से कंडक्ट करे जा सके सो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू we are a one stop solution for online assessments of all kinds. जब मैं आपको डेमो दिखाऊंगी then definitely we will see how teachers can conduct online assessments हर तरीके के online assessments which is tests, exams, quizzes, but group projects और presentations और discussion boards, homework और holiday homework जैसी चीजें भी teachers can conduct from our platform. So we will be seeing everything. This particular demo, जैसे मैंने बोला, it will take me some 30-40 minutes to actually conduct this demo. Four things we will cover largely. What are the formats of tests teachers can make? चीटिंग को रोकने के लिए टीचर्स क्या क्या कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से, क्या क्या फीचर्स हैं उनके पास. The other assessment modules that teachers can use. Other assessment modules से मतलब जैसे मैंने अभी बोला ग्रुप प्रोजेक्ट्स है, डिस्कशन बोर्ड्स है, ये सारी चीजें टीचर्स कैसे कंडक्ट कर पाएंगी. एंड वी विल आल्सो सी टीचर्स चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टूडेंट्स को ग्रेड्स कैसे मिलते हैं, प्लस आल्सो हाउ कैन टीचर्स गिव फीडबैक टू स्टूडेंट्स. So we will see that. First thing, we will see holistically how do teachers conduct homework, tests and exams completely online. So I will take you to our platform now. I am logging in as a teacher. तो सबसे पहले हम टीचर का डैशबोर्ड देख लेंगे and we will see how a teacher creates a test. टीचर्स के पास क्या क्या टूल्स हैं कोई टेस्ट बनाने के लिए, किस किस तरीके से टीचर्स कैन क्रिएट टेस्ट and how do they efficiently manage these tests. So this is a teacher's dashboard that you are seeing in front of you right now. एक टीचर कोई भी टर्म में बहुत सारे क्लासेस दे विल बी कंडक्टिंग, सो डेफिनेटली ऑल ऑफ द क्लासेस दैट अ टीचर टीचेस इन अ गिवन टर्म, इन अ गिवन स्कूल टर्म, उनकी सारी क्लासेस एक जगह पे लिस्टेड डाउन होंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे. सो जैसे मेरे पास अभी एक डेमो कोर्स करके क्लास लिस्टेड डाउन है, बट इफ अ टीचर इज टीचिंग 5 या 6 क्लासेस, ऑल ऑफ हर क्लासेस विल बी लिस्टेड डाउन हियर. So I will just enter this demo course. ये मेरा class है जिसके लिए I want to create a test. So I will just click on it. When I reach this class, there are a few things I can do from here. I can पोस्ट ऑन द बुलेटिन. बुलेटिन एक बहुत इजी एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में. इट एक्ट्स एज अ फोरम बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स दैट दे कैन शेयर इंपॉर्टेंट अपडेट्स विथ वन अनदर. यहाँ से टीचर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसेज या ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट कर सकते हैं. वी विल कम बैक टू दिस. मैं ये भी समझाऊंगी समवॉट एट द एंड ऑफ द डेमो. टीचर्स डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट से, इंपॉर्टेंट कोर्स मटेरियल हो, कंटेंट हो, सो दे कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स. We also have integration with classteacher.com जिससे teachers can get content and course material for their classes and their assignments. अभी what we are seeing is the assignments dashboard for a teacher. Okay, Narendra ji, you're saying my voice is not really audible, or I will try to speak loudly. I think that should work. Okay. So we are at an assignments dashboard for a teacher. इस assignment dashboard पे what teachers can see is उनके सारे assignments जो उन्होंने past में create किए हैं, या if they're in the middle of creating some assignment, then teachers को सारे assignments list form में they get to see on this dashboard. इस dashboard से it makes it very easy for teachers to stay updated with every assignment. यहाँ से टीचर्स कैन सी ओके दिस वाज माय असाइनमेंट जिसका टाइटल था क्लास वर्क, उसका स्टेटस क्या है. स्टेटस टेल्स बेसिकली एक्टिविटी ऑन ईच असाइनमेंट. सो टीचर्स कैन गेट टू नो ओके आई मे बी स्टार्टेड ग्रेडिंग दिस असाइनमेंट. मैं 2 बच्चों का एग्जाम चेक कर चुकी हूँ एंड आई हैव 2 more left. If I have opened the assignment, meaning submissions are still coming in.
Needs grading tells me I haven't started checking any of the submissions and I need to start doing it. Then unpublished simply means draft format में है वो assignment जो अभी तक publish भी नहीं हुआ है students को, and teachers are just creating the questions. So this is what the different status of an assignment tells a teacher. Important dates हैं for teachers to pay attention to कि submission deadline कब है, आपने ओपन कब किया था ये टेस्ट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर हियर. प्लस ऑल्सो कैटेगरी क्या है एक असाइनमेंट का, मीनिंग इज इट अ होमवर्क, क्या वो एग्जाम है, क्या वो क्लास टेस्ट है, ऑल ऑफ दीज कैटेगरीज विल बी लिस्टेड डाउन हियर. उसके टोटल मार्क्स एंड अ सबमिशन ट्रैकर दैट टेल्स अ टीचर दैट इफ यू हैव 20 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आपके कितने बच्चों ने आपके क्लास से कितनों ने सबमिट किया है, कितने अभी बाकी है सबमिट करने के लिए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स विल बी लिस्टेड डाउन हियर. तो ये तो हो गया फॉर टीचर्स डैशबोर्ड विच इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड टेल्स अ टीचर एवरीथिंग शी नीड्स टू नो उनके असाइनमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में. How do teachers actually create an assignment? So if you see this add button here, this is where teachers come, they will click on it and they will start creating their assignment. 3 categories open up for them कि इन तीनों categories को choose करके teachers can start creating कोई भी test या कोई भी exam या किसी भी तरीके का assignment हो. If we talk about this first category here, इस category से teachers can give group projects या holiday homework to students. ये फॉर्मेट में थोड़ा डिफर करता है फ्रॉम टेस्ट या क्विज फॉर्मेट. This category test and quiz works in a very advanced and optimized manner of the regular question answer format that teachers offline देते हैं students को जब वो question paper set करते हैं. ये उसी तरीके से काम करेगा but completely online and very optimized. Third category you are seeing is an import button. What this import button does for teachers is that कि अगर आपने पिछले टर्म में या कुछ हफ्ते पहले कोई टेस्ट दिया था जिसके क्वेश्चंस आप कॉपी करना चाहते हैं और दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट्स, अ न्यू सेट ऑफ स्टूडेंट्स को पब्लिश करना चाहते हैं, तो यू कैन सिंपली डुप्लीकेट that assignment from this import button here. So these are 3 things teachers can do when they click on the add button. We will first create a test. So I'll click on test. ये जो creation box आपके सामने खुला है, this is where teachers put in important information related to their test. The only mandatory thing they need to put is the title of the test. So I can put any title here. बाकी चीजें जो आप देख रहे हैं, these are not mandatory for teachers to put. ये सारी चीजें टीचर्स के कन्वीनियंस और टीचर्स के यूज के लिए हैं. यहाँ से दे कैन पुट इंस्ट्रक्शंस इफ दे हैव फॉर देयर क्वेश्चन, इफ दे वांट स्टूडेंट्स टू know that they need to attempt all the questions or they need to make sure they are answering in a certain word limit या कुछ भी important instructions teachers देना चाहते हैं, they can type all of this here. बाकी चीजें जो हैं these are security measures. मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था teachers also have options to choose features making sure that students cheat ना कर पा रहे हो अपने online assessments में. तो वो सारी चीजें भी teachers यहाँ से ही बताते हैं. We will also discuss this since this is a separate module. और बाकी चीजें टीचर्स यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि इफ द टीचर ऑलरेडी नोज कि उनके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, कितना टोटल मार्क्स है एक एग्जाम का. सो ऑल ऑफ दिस शी कैन पुट हियर, नॉट मैंडेटरी बट अ गुड टू हैव फॉर टीचर्स. दे कैन कीप एडिटिंग दिस ऑल्सो. एक टेस्ट बनाने के लिए उन्हें सिर्फ टाइटल देना है, देन दे सिंपली हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट. They will be taken to the question creation screen right now. This is where they will create their questions. यहाँ पे मिड टर्म एग्जाम के क्रिएशन स्क्रीन पे हम आ गए. I just have to click on add question and it will add an empty question box for me and I will start choosing its category. Question text मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ and I can if because this is a multiple choice question मैं क्वेश्चन के ऑप्शंस भी यहाँ पे लिख सकती हूँ. सो दीज थिंग्स टीचर्स कैन डू. जब वो क्वेश्चन टेस्ट बनाने वाले हैं वो क्या क्या डालते हैं क्रिएशन बॉक्स में एंड वो क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, दिस इज हाउ इट हैपेंस. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ सैम्पल टेस्ट फॉर यू जिसमें 5 डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आई हैव पुट. सो आई विल शो यू दैट सैम्पल टेस्ट सो यू कैन हैव एन आइडिया कि क्वेश्चंस बनने के बाद कैसे दिखते हैं, हाउ डू टीचर्स डिफाइन मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. So I will just open up this test. इस टेस्ट में मैंने सारे क्वेश्चंस
के साथ साथ आई हैव आल्सो पुट अ हिंदी क्वेश्चन टू शो कि वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस में भी टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे कैसे टेस्ट बना सकते हैं, टेक्स्ट कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आल्सो हाउ दे कैन अटैच विद देयर क्वेश्चन. सो पहले क्वेश्चन पे विल कम. आई जस्ट जूम इनटू इट हियर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. एंड बिफोर स्टार्टिंग अ क्वेश्चन, द टीचर कैन डिसाइड द कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन, द टाइप वेयर दिस क्वेश्चन फॉल्स इनटू. तो हमारे प्लेटफॉर्म पे देयर आर 5 कैटेगरीज दैट अ टीचर कैन चूज: मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल सिलेक्ट, फ्री रिस्पॉन्स, ट्रू फॉल्स या फाइल अपलोड क्वेश्चन. मल्टीपल चॉइस, सिलेक्ट और ट्रू फॉल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर सिंपली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिनके हमेशा एक वन करेक्ट आंसर विल बी देयर, प्री डिफाइंड करेक्ट आंसर होता है. तो इन तीनों क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में जो जिनका सिर्फ एक करेक्ट आंसर है, दीज 3 क्वेश्चंस द सिस्टम कैन चेक ऑन इट्स ओन. तो ऑटो इवैल्यूएशन हो जाता है, मीनिंग टीचर्स विल चेक, सेव अ लॉट ऑफ टाइम if they have set these 3 categories of questions in their question paper. बाकी जो 2 कैटेगरीज है, विच इज फ्री रिस्पॉन्स एंड फाइल अपलोड क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें शायद स्टूडेंट्स को कोई डॉक्यूमेंट बना के टीचर्स को अटैच करना है, या इफ दे हैव क्रिएटेड अ डायग्राम ऑन पेपर, देन दे विल बी अपलोडिंग दैट इमेज ऑफ द डायग्राम as an answer. So ये दोनों जो categories हैं, they take care of such answers. These definitely teachers will have to grade on the platform, but the way to grade them is also very easy. So we will see how that also happens. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन है. ये सब्जेक्टिव या लॉन्ग आंसर तरीके का क्वेश्चन है, जिसमें मैंने स्टूडेंट्स के लिए लिख दिया है व्हाट इज द स्टोरी ऑफ मैकबेथ अबाउट. इसके साथ साथ आई हैव आल्सो अटैच्ड अ यूट्यूब क्लिप. if I want students to look at a video, if I want them to look at a word document या कोई pdf है, या even एक image है जो मैं students को दिखाना चाहती हूँ question के text के साथ, then I can attach all of those things as well. Once I have done that, I also define a correct answer. ये जो correct answers teachers लिखते हैं सारे questions के लिए, it serves 2 purposes. First, it serves the purpose of when teacher is checking a student answer for a long answer question. तो teachers के पास बहुत marking scheme होती है कि वो लिख देते हैं if this student has mentioned this, then they will get 2 marks. If they have not mentioned something, they will get -2. So all of those things plus the correct answer, teachers can write here for their reference when they are checking. Secondly, they can also write this for students to see the correct answers after their grades have been published. Students को जो answer की दिखेगा उनके marks मिलने के बाद, उसमें ये correct answer students को दिखेगा. So they also know where they went wrong, कहाँ उन्हें improve करना चाहिए, teachers का expectation क्या था correct answer के हिसाब से. So that is why the correct answer is there. We'll move on to the second question, which is a file upload question. This also takes care of answer जो long answer type हो, या ऐसे answers हो जिसमें students को कुछ solve करना पड़े पेपर पे लिख के, या कोई word document बनाना पड़े. So उसके लिए file upload can be used. इसका answer करने का तरीका एक file upload करने से ही होगा. Students cannot type their answer if this category is chosen. तो इसमें I have written draw and upload the image of a labeled flower, and I have attached an image here for students to see. So I will open this up for you. Even teachers can attach an image, a handwritten image if they want with their question. So this is what I have attached for my question, and the student will be able to see this. I'll move to my third question, which is a multiple choice question. यहाँ पे question का text है और उसके सारे options हैं. Here I will show you how teachers can put questions that require, suppose कोई बहुत complicated symbol हो mathematical problem में, या vernacular language या हिंदी का कोई question हो अगर, तो teachers अगर उनके पास soft copy हो या from Google, if they're taking something, they can simply copy it and paste it here. So they can take care of these questions as well. दूसरी चीजें जो teachers can do from our questions is, because everywhere they can attach images या बहुत सारा visual material. So if there are very young classes, say first or second standard, जो शायद बहुत high level assessment से उतना benefit नहीं कर पाए, so teachers can use this option where they can attach images in questions and also images in options if they are choosing multiple choice या multiple select question, so that the students, young students who are attempting from the
प्लेटफॉर्म वो स्क्रीन पे क्वेश्चन को विजुअली देख देख के आंसर करे. सो दिस मेक्स इट इजी फॉर यंग स्टूडेंट्स ऑल्सो. We are moving to our next question, which is a true false question. क्वेश्चन टेक्स्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, एंड वी हैव डिफाइंड इन दोनों में से क्या करेक्ट आंसर होगा. ये स्टूडेंट्स व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग, ऑफ कोर्स दे विल नॉट सी द करेक्ट आंसर, बट ये सिस्टम के इंफॉर्मेशन के लिए है, बिकॉज सिस्टम विल इटसेल्फ चेक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. So we'll move on to the last question here. This is a Hindi question. I have kept it as file upload because if I zoom into this, I have written that students को एक handwritten image ही upload करना पड़ेगा इस image इस question के answer के लिए. तो मैंने students के लिए भी बहुत clearly define कर दिया है कि उन्हें करना क्या है actually for this question. So we have created 5 different kind of questions. पांचों का category, पांचों में resources different attach किए हैं, पांचों के मार्क्स भी डिफरेंट है. मार्क्स यहाँ पे लिख देते हैं टीचर्स, एंड देन वी कैन गो अहेड एंड पब्लिश दिस टेस्ट. पब्लिश करने से स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन चला जाता है दैट योर टीचर हैज राइट नाउ पोस्टेड अ न्यू असेसमेंट. सो स्टूडेंट्स आर इमीडिएटली इन्फॉर्म्ड दैट उनके पास एक नया असेसमेंट आया है, एंड दे कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट. Before we move on to that, we'll just discuss these dates here. These dates help teachers define कि सबमिशन डेडलाइन क्या है किसी भी टेस्ट या एग्जाम का, और एक अवेलेबल डेट क्या है. अवेलेबल डेट अगर टीचर्स फ्यूचर के लिए सेट करें, जैसे आज 18 तारीख को हम ये टेस्ट बना रहे हैं एंड वी कीप दिस फॉर 20th जून, वी वांट स्टूडेंट्स टू अटेम्प्ट दिस ऑन 20th जून, तो हम वो डेट और टाइम सेट कर सकते हैं एंड ऑटो पब्लिश हो जाएगा उस डेट और टाइम पे ये पर्टिकुलर असाइनमेंट. टीचर्स के लिए दिस रियली सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम. अगर वो 5 डिफरेंट क्लासेस के लिए कोई असाइनमेंट सेम टाइम पे पब्लिश करना चाहते हैं, सो दे कैन जस्ट ऑटो पब्लिश द असाइनमेंट इन दिस मैनर. तो हमने ये टेस्ट अभी पब्लिश कर दिया है. वी कैन मूव ऑन टू अ स्टूडेंट्स डैशबोर्ड राइट नाउ. So we will also very quickly, as a student, Rohit is our student. For demo purposes, I will refer to the student as Rohit. Rohit will attempt that test that we just created. So I will just enter Rohit's profile right now. Right. So this is Rohit's platform. This is Rohit's dashboard. Rohit is the student. Rohit has just received a notification right now. As I said, students को भी immediately notify हो जाता है if the teachers have published a test. सबसे पहला notification रोहित का says that your teacher Amina Rahim created a new assessment. So I will click on it and I will see that my teacher has given me 10 minutes time limit for this test. टाइम लिमिट, क्वेश्चन ऑर्डर का रैंडमाइजेशन, मतलब क्वेश्चंस जंबल होना, एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन दिखना, दीज आर थिंग्स दैट टीचर्स डिफाइन. ये सिक्योरिटी मेजर्स में आते हैं. व्हेन वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग द टेस्ट एज रोहित, देन वी विल सी दैट ये सारी measures जो teachers लेते हैं, how do they actually get implemented on the students end. So we will see that. रोहित का टाइमर अभी शुरू हो गया है. He only had 10 minutes to attempt this test. His timer is actively going on and he's on the first question. Here I will pause for a second and I will ask you to recall two things. जब हम टीचर की तरह टेस्ट बना रहे थे, तब हम स्क्रॉल कर करके अपने क्वेश्चंस बना रहे थे, और हमने पहला क्वेश्चन एक फ्री रिस्पॉन्स क्वेश्चन रखा था. जब हम आगे जाएंगे रोहित के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, देन यू विल सी कि जो ऑर्डर में टीचर ने क्वेश्चंस बनाए हैं वो जम्बल्ड है डेफिनेटली, और रोहित को एक मोमेंट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है. So first question Rohit is seeing is draw and upload an image of a labeled flower. Teacher ने जो handwritten image upload किया था, Rohit is able to see it, and now Rohit needs to attach a drawing of a labeled flower. So he'll click on attach, and I'll pick up a demo image from here. जब स्टूडेंट्स ये टेस्ट फोन से अटेम्प्ट कर रहे होंगे अपने फोन से, तो दो तरीके हैं, वो फोन से या लैपटॉप से, दोनों तरीके से दे कैन टेक द टेस्ट, दे कैन कम्प्लीटली यूज इट प्रॉपरली अगर फोन से या लैपटॉप से करना चाहें तो. द अदर थिंग इज, जब इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे स्टूडेंट्स आएंगे और अटैच फाइल्स पे क्लिक करेंगे अपने फोन से, तो उनका कैमरा इमीडिएटली ओपन हो जाएगा, और कैमरे के साथ वो अगर कुछ बना रहे हैं रियल टाइम, वो उसका फोटो लेके अपलोड कर सकते हैं. सो दे कैन डू दैट. तो आई जस्ट रिव्यू कि मैंने जो इमेज अटैच किया था वो सही है कि नहीं, एंड देन आई विल क्रॉस इट आउट. आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज ए हिंदी क्वेश्चन. मेरी टीचर ने मुझे हैंड रिटन इमेज अपलोड करने के लिए कहा है.
So I'll zoom out and again I'll click on attach files. तो सपोज मैंने कुछ लिख के रखा है या उस मोमेंट लिखा हुआ है, so I'll just click on handwritten image. I'll expand this and also see, okay, this is what my answer looks like. I'll check it, I'll cross it out and I'll move on to my third question. ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इनमें से मुझे लगता है ये सही आंसर है, so I'll click on it and I'll move on to my other question. True false question, I'll click on this, मुझे लगता है false है, and then I'll come to my last question, which is a free response question, जो long answer type question होते हैं जिसमें students को answer लिखना पड़ेगा. So students can write as long a answer as they want to. Word limit नहीं है platform पे कोई, but students को अपना time देके और teachers का instruction देके they have to give these answers. So here also Rohit can see that he had 5 questions, और सारे questions की side में tick mark आ रहा है. This would mean that उसने सारे questions attempt कर लिए. तो कभी कभार जल्दबाजी में अगर students को एक question छोड़ देते हैं, so the platform will give them warning also कि या तो आपने incomplete submission दिया है या यहाँ पे अगर tick mark नहीं है तो इसका मतलब कि आप कोई question छोड़ चुके हो. तो यहाँ पे जाके रोहित will click on submit because he has attempted all 5 questions and he will give the teacher his submissions. So Rohit can not change his answers. वो अपने answers edit नहीं कर पाएंगे, submit करने के बाद change भी नहीं कर सकते. They can only see, he can only review his answers. We'll come back to the teacher's dashboard right now. As a student, we have now given our submission to our teacher, and abhi teacher will start grading Rohit's answers. Before we do that, अभी तक हमने टेस्ट बनाना देख लिया है, स्टूडेंट्स कैसे अटेम्प्ट करते हैं कोई टेस्ट, we have seen that also. So I will just take a moment to recap all the things that we have seen. So we have seen how teachers can create a test for students or for a specific group of students. This I will just explain for a moment. जब यहाँ पे ये if you remember, this is the creation box for teachers. यहाँ पे teachers title डालते हैं किसी भी quiz का. जब whenever they're starting a quiz, दूसरी चीज जो टीचर्स कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर इज, क्या मैं अपना ये वाला टेस्ट अपने सारे स्टूडेंट्स क्लास के सारे बच्चों को देना चाहती हूँ, और आई ओनली वांट टू गिव इट टू सिलेक्टिव स्टूडेंट्स. देयर माइट बी मोमेंट्स जहाँ पे टीचर्स को इम्प्रूवमेंट या रेमिडियल टेस्ट देने होंगे स्टूडेंट्स को, या ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसके 2 डिफरेंट सेट्स हो जो अलग अलग बच्चों को अलग क्वेश्चन पेपर मिले. उस केस में टीचर्स ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, बच्चों को रैंडमली डिवाइड कर सकते हैं ग्रुप्स में, और दोनों ग्रुप्स को अलग अलग क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं एक ही टेस्ट का, जो वो सेम टाइम पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे, पर दोनों के पास सेट्स और क्वेश्चंस डिफरेंट है. So teachers can use this option as well. So I'll come to the presentation again. So teachers can create a test for specific group of students or for all students. They can add various types of questions. We saw 5 different categories. हमने free upload, file upload, free response, multiple choice, इस तरह के questions देखे. How can teachers create? What all teachers can attach in the question? Also we saw teachers also copy paste कैसे करते हैं question का text, that we saw. टीचर्स एक आंसर की डिफाइन करते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑटो इवैल्यूएशन के काम में आता है, एंड अपने रेफरेंस के लिए दे कीप करेक्ट आंसर्स फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, आल्सो फॉर आंसर की व्हेन स्टूडेंट्स गेट टू सी. ऑटो इवैल्यूएशन की बात भी हमने की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टीचर्स कैन ऑटो इवैल्यूएट. Are there any questions here? You can unmute yourself and ask me questions. अभी तक हमने जो भी देखा इसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी questions हो, then I can take them up. Okay. If there are no, let me just see. If there are no questions, I will just move ahead. अगर आपके पास बाद में भी कोई question आता है तो आप chat पे लिख सकते हैं, or you can just unmute yourself and ask me. So we'll move on. Now we will see how do teachers actually check a student answer. So we have extensive and easy to use evaluation tool for teachers, जिससे वो students को marks देते हैं, and also
फीडबैक देते हैं स्टूडेंट्स को. सो वील कम बैक टू द प्लेटफॉर्म नाउ. ये हमारा टेस्ट था, हमने इसे पब्लिश किया था एज अ टीचर. रोहित ने अपना सबमिशन दे दिया है. नाउ वील कम टू दिस डैशबोर्ड हियर. हर एग्जाम, हर असाइनमेंट के लिए टीचर्स के पास एक सबमिशन और एक रिजल्ट्स डैशबोर्ड होगा, जिसमें उन्हें हर स्टूडेंट का प्रोग्रेस दिखता रहेगा. और अगर किसी स्टूडेंट ने सबमिट किया है, सो दे विल आल्सो बी एबल टू सी कि किस वक्त पे और किस डेट पे दे हैव सबमिटेड इट. So teachers can see this. Evaluation करने के लिए there are two tools, there are two modes of evaluation that teachers have. So if you see here that there's a results by student and results by question option. ये दो तरीके हैं टीचर्स के लिए evaluate करने के लिए. So by student simply means that अगर मेरे पास 20 बच्चे हैं, पहला स्टूडेंट रोहित है, तो मैं रोहित के आंसर्स में जाके सारे आंसर्स रोहित के लिए आई कैन चेक. फिर मैं दूसरे स्टूडेंट के लिए जाके सारे आंसर्स फॉर दैट स्टूडेंट आई कैन चेक. तो स्टूडेंट बाय स्टूडेंट चेक कर सकते हैं टीचर्स. Then there is a results by questions option. What this means is अगर मेरे पास जैसे हमने 5 क्वेश्चंस बनाए थे हमारे टेस्ट के लिए और हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो हम पहले क्वेश्चन पे जाएंगे, सारे बच्चों का 10 बच्चों का वो क्वेश्चन चेक करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे जाके सारे 10 बच्चों का वो क्वेश्चन चेक कर सकते हैं. सो दिस इज अ मोड दैट टीचर्स हैव. रिजल्ट्स बाय क्वेश्चन इज अ वेरी इजी वे टू यूज फॉर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जिसमें शायद टीचर को बहुत अटेंशन टू डिटेल लगे. सो दे कैन यूज दिस ऑप्शन टू जस्ट चेक ऑल लॉन्ग आंसर्स एट वंस. देन दे कैन मूव ऑन टू अदर क्वेश्चंस. आई विल जस्ट चेक द चैट. आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन. Sanjay ji, you're saying my voice is not clear, so I'll just pause here for a minute and I'll just check what is the issue with my audio. Zen, is there an issue? What kind of issue is there with my audio? Is it a right? Adira ji, can you please tell me what is the issue with my audio? क्या मेरा voice बहुत faint है या कट के आ रहा है? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे पास शायद नेट स्पीड सही है इस वजह से. सो दिस मे पॉसिबल कि वहाँ पे शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो. इशू है. अच्छा. तो नरेंद्र जी और संजय जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट करके मुझे बता दें मेरे ऑडियो में एक्चुअली क्या इशू आ रहा है. एंड प्लीज अगर आप अपना वीडियो भी बंद कर लेंगे तो शायद ऑडियो क्वालिटी थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि वीडियो से भी वो ज्यादा बफर कर रहा है. हाँ, ये भी हो सकता है. माय वीडियो इज ऑफ एक्चुअली. आप अच्छा संजय जी, नरेंद्र जी, आप अगर मुझे बता दें एग्जैक्टली इशू क्या है ऑडियो में, सो आई कैन जस्ट चेक दैट. हेलो. यस आदिरा जी. नहीं मुझे लगा शायद नहीं. ठीक है. आई थिंक फिर से अगर इशू आता है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. आई विल ट्राई टू बी लाउड एज पॉसिबल. और दूसरी चीज ये है कि मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ ये सेशन, तो जो भी अगर आप ऑडियो में मिस आउट कर रहे हैं तो मैं ये उस रिकॉर्डिंग में कंप्लीटली मेरा वॉइस ऑडिबल रहेगा, बिकॉज मेरा लैपटॉप के पास ही है माइक. अदरवाइज कुछ अनक्लियर है स्पेसिफिकली अगर प्लेटफॉर्म पे, तो आप मुझे वो चैट पे भी पूछ सकते हैं. आई कैन रिपीट इट ऑल्सो. सो वील कम टू चेकिंग अ स्टूडेंट्स आंसर नाउ. तो हम रोहित के नाम पे क्लिक करेंगे एंड विल कम टू हिज आंसर्स. हियर यहाँ पे हम 3 चीजें देखेंगे. फर्स्ट थिंग वी विल सी कि टीचर्स मार्क्स देते कहाँ पे हैं स्टूडेंट्स को, वो मार्क्स देने का तरीका क्या है. दूसरी चीज वी विल सी कि टीचर्स फीडबैक कहाँ देते हैं. अगर नॉर्मल पेन पेपर इवैल्यूएशन भी कर रहे होते हैं टीचर्स, तो वो कमेंट्स देते हैं स्टूडेंट्स को कि यू डिडंट मेंशन दिस, या आपके मार्क्स कटे गए बिकॉज यू डिडंट यूज दिस फॉर्मूला, या आपने ये स्टेप नहीं अटेम्प्ट किया. सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स टीचर्स ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और ये फीडबैक बहुत हिस्टोरिकली रजिस्टर हो जाएगा स्टूडेंट्स को बार बार देखने के लिए. सो ये फीडबैक कहाँ पे और कैसे देते हैं टीचर्स, वी विल सी. थर्ड थिंग वी विल सी इज ऑटो इवैल्यूएशन, जिसकी मैं बात बार बार कर रही हूँ कि सिस्टम अपने आप कैसे चेक करता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. सो वी विल सी दैट. सो वी आर एट क्वेश्चन 1. यहाँ ये ग्रेड बॉक्स है जहाँ पे टीचर्स आके आप मार्क्स लिखते हैं स्टूडेंट्स के. यहाँ से दे गिव फीडबैक. सो विल लुक एट द स्टूडेंट आंसर फॉर दिस.
ये करेक्ट आंसर था जो मैंने अपने रेफरेंस के लिए रखा था, एंड दिस इज व्हाट रोहित हैज रिटन। तो मैं रोहित का आंसर पढ़ के चेक करूंगी एंड आई विल गिव हिम सम मार्क्स हियर। सो सपोज आई राइट 25. I also want to give him feedback, so I will give him feedback. तो मैंने रोहित को फीडबैक भी दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन वी आर कमिंग टू इज अ फाइल अपलोड क्वेश्चन, जिसमें हैंड रिटन आंसर मांगा था हमने स्टूडेंट से हिंदी में, सो आई विल एक्सपैंड दिस। और जो रोहित ने हैंड रिटन लिख के भेजा हुआ है, आई कैन सी दैट मल्टीपल फाइल्स भी स्टूडेंट्स भेज सकते हैं। अगर 5 पेज लंबा आंसर होगा तो वो भी अटैच करके भेज सकते हैं, एंड आई कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दोस पेजेस वन बाय वन। अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ ये फाइल जो रोहित ने भेजी है अपने सिस्टम पे लोकली स्टोर करने के लिए, then I can do that. आवाज नहीं आ रही है। Okay. Sorry. आवाज नहीं आ रही है। कमल जी आवाज नहीं आ रही है। You are not audible. I am not audible. कट रही है आवाज। आवाज आ रही है। Sorry. कौन था इस आपने जो बोला एक्चुअली मिस हो गया, नॉट कमल जी। I think आदिरा जी, were you saying something? जी सर, जी सर, मैं समझ रही हूँ सर, थोड़ा नेटवर्क का इशू है लगता है। मुझे आवाज आ रही है, इसकी जो भी रिकॉर्डिंग होगी सर वो मैं आपसे शेयर कर लूंगी। आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज आ रही है ना, तो वो नेटवर्क का ही इशू है लगता है। आ रही है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। हाँ, वही हो रहा है। आप अगर अपने स्क्रीन पे नीचे देखें, अगर आपका वो नेटवर्क वाला बार लाल है, इसका मतलब शायद नेटवर्क आपके एंड पे थोड़ा सा वीक होगा, सो दैट वुड मीन कि इसीलिए वॉइस थोड़ा कट कट के आ रहा है। अगर आप एक बार चेक कर लें। हाँ, कोई बात नहीं, इसलिए हो सकता है। नहीं सर, मैं वो रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर कर लूंगी सर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। हेलो। हाँ, कैरी ऑन। अच्छा कमल जी, क्या आप चाहते हैं मैं ये वाला पॉइंट एक बार रिपीट कर दूं जो आपको शायद सुनाई नहीं दिया होगा? हाँ, इसको रिपीट कीजिए आप। ठीक है, श्योर। तो अभी तक हमने दो क्वेश्चंस चेक किए हैं फॉर स्टूडेंट्स। श्योर। सो दो क्वेश्चंस चेक किए हैं फॉर स्टूडेंट्स, व्हिच इज अ फ्री रिस्पांस क्वेश्चन। यहाँ पे स्टूडेंट ने अपना आंसर खुद लिखा था, सो वी कैन सी ये स्टूडेंट का आंसर था। हमने उन्हें 25 आउट ऑफ 30 मार्क्स दिए हैं। ये टीचर्स खुद मार्क्स लिखते हैं यहाँ पे। दे कैन गिव पार्शियल मार्क्स ऑल्सो, नेगेटिव मार्क्स भी देना चाहते हैं तो दे कैन गिव दैट ऑल्सो टू स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे 25 मार्क्स दे देते हैं। फीडबैक दे सकते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एक फीडबैक कॉमेंट होता है जिससे दे कैन राइट फीडबैक टू स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन पे हम आ जाएं तो यहाँ पे हमने स्टूडेंट से एक हैंड रिटन आंसर मांगा था। So हम देख लेते हैं what has Rohit sent us handwritten. So he has sent us this. Students multiple images भी attach कर सकते हैं अगर उन्होंने 5 या 6 पेज लंबा कोई आंसर लिखा है, so they can attach everything. मैं एक एक करके as a teacher I can go through that. यहाँ से I can also download a student's answer if I want. So I'll just cross this and यहाँ पे हम रोहित को 20 marks दे देते हैं. So we've given him 20. थर्ड क्वेश्चन पे हम आ जाएंगे। ये हमने चेक नहीं किया था, इस पे हम फ्रेशली आ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि ग्रेड बॉक्स में ऑलरेडी 30 आउट ऑफ 30 रोहित को मिला हुआ है। सिंपली द रीजन इज बिकॉज दिस वाज ऑटो इवैल्यूएटेड। सो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, एक ही करेक्ट आंसर था, रोहित ने सही आंसर पे ही टिक मार्क लगाया है। दैट वुड मीन रोहित को इस क्वेश्चन के लिए सिस्टम अपने आप मार्क्स दे देगा, विच इज 30 आउट ऑफ 30। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए होता है। दूसरे आंसर पे भी हम आ जाएंगे तो अगेन रोहित का ग्रेड बॉक्स फिल्ड है, 0 आउट ऑफ 30 मिला है रोहित को, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था और रोहित ने गलत आंसर चेक किया है। दैट वुड मीन ही इमीडिएटली गेट्स 0 मार्क्स। तो सिस्टम ने वो भी रोहित को दे दिया है। विल कम टू द लास्ट क्वेश्चन। ये भी फाइल अपलोड क्वेश्चन है। वी आस्क्ड स्टूडेंट टू अपलोड द इमेज ऑफ अ लेबल्ड फ्लावर। तो अगर मैं एक्सपैंड करूं तो मैं देख सकती हूँ रोहित ने हमें ये बना के भेजा है। सो वी कैन सी दिस इमेज एंड वी कैन गिव हिम सम मार्क्स यहाँ पे। सो आई गिव हिम 22। तो ये जो फीडबैक देने का मैकेनिज्म है इस टेस्ट के फॉर्मेट में, ये वन वे होता है। मतलब टीचर्स जो कमेंट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट देख सकते हैं, अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं उस हिसाब से। दूसरी चीज, हमारे पास जो दूसरे फॉर्मेट्स है वो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स या होमवर्क।
या किसी तरीके का डिस्कशन बोर्ड, वहां पे फीडबैक टू वे होता है, स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में होता है, ताकि वो लोग एक्चुअली चैट कर सके, उस फीडबैक के बारे में समझ सके। सो उन फॉर्मेट्स में दिस फीडबैक इज टू वे, क्योंकि दिस इज मोर लाइक एन एग्जाम फॉर्मेट। ये वाला जो टेस्ट वाला फॉर्मेट है, इसमें फीडबैक इज वन वे। हमने सारे आंसर्स रोहित के लिए चेक कर दिए हैं। वी कैन गिव रोहित हिज मार्क्स नाउ। सो आई जस्ट क्लिक ऑन हेलो पब्लिश ग्रेड्स। हेलो हेलो जी कमल जी। हाँ हेलो 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 कमल जी, मिस्टर कमल। हेलो हेलो जी सर। हेलो 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 सर। आई थिंक कमल जी का शायद ऑडियो डिस्टरबेंस हो रहा होगा। हेलो या आदिला जी, मैं सर से बात कर लेती हूँ फोन करके एक हाँ बारी। ठीक है, ओके थैंक यू। हेलो हेलो जी सर। हेलो हेलो कमल जी, हेलो। आई जस्ट स्टॉप योर वीडियो फॉर अ सेकेंड। मैं अपने एंड से आपका वीडियो ऑफ कर रही हूँ। अगर आप अब अपना आवाज इफ यू ट्राई टू से, शायद आपका अभी नेटवर्क बेटर हो जाए। ओके आई जस्ट मूव ऑन। तो यहाँ पे हमने रोहित को मार्क्स दे दिया है। विल गो अहेड एंड पब्लिश हिज ग्रेड्स। अब रोहित विल गेट अ नोटिफिकेशन दैट ही हैज received marks for his test. So if we go to Rohit's dashboard right now, so again रोहित को एक नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल गया है that he has received his marks. उस टेस्ट स्क्रीन पे आके रोहित कैन सी हिज मार्क्स फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पे, और जहां जहां पे फीडबैक मिला है दैट टू रोहित कैन सी। तो इस क्वेश्चन पे हमने फीडबैक दिया था रोहित को, सो ही कैन सी ऑल ऑफ दैट। So he can see his feedback. Teacher has asked him to fix his spellings, so Rohit can see that. और सारे क्वेश्चंस का मार्क्स रोहित विल सी हियर। दूसरी चीज जो रोहित कैन सी जब उन्हें मार्क्स मिल गए हैं, और ये टीचर के डिसाइड करने पे ही पॉसिबल होता है कि स्टूडेंट को एक्चुअली जो आंसर की है, जो करेक्ट आंसर्स हैं, वो किस पॉइंट पे स्टूडेंट को दिखने चाहिए। तो टीचर डिसाइड कि अगर स्टूडेंट का ग्रेड्स मिल गया है, क्या उसके बाद स्टूडेंट्स को सही आंसर दिखना चाहिए, या एक स्पेसिफाइड डेट के बाद सारे स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर दिखना चाहिए, या सबमिशन डेडलाइन के बाद। सो ये सारी चीजें भी टीचर डिसाइड करते हैं। यहाँ पे रोहित कैन सी दी करेक्ट आंसर राइट नाउ, क्योंकि टीचर ने सेटिंग में ये लिखा होगा कि शो करेक्ट आंसर टू स्टूडेंट्स आफ्टर दे हैव रिसीव्ड देयर मार्क्स। क्योंकि अब मार्क्स मिलने के बाद स्टूडेंट्स अपना आंसर एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सो दे कैन ओनली सी कि ओके दिस वाज द करेक्ट आंसर जो टीचर ने सेट किया था। यहाँ पे मैंने गलत आंसर चेक किया था और ये सही होना था। तो ऑल ऑफ दोस थिंग्स स्टूडेंट्स कैन सी। स्टूडेंट्स कोर्स में एक टर्म में बहुत सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट और एग्जाम्स अटेम्प्ट करेंगे। तो वेयर डू दे एक्चुअली सी ऑल ऑफ देयर मार्क्स इन द सेम प्लेस? सपोज पेरेंट्स देखना चाहते हैं कि वेयर इज द कॉम्प्रिहेंसिव मार्क्स लिस्ट फॉर देयर चाइल्ड। उनके सारे मार्क्स एक जगह कहाँ पे हैं, उनके सारे फीडबैक कमेंट एक जगह पे कहाँ पे हैं। तो हर कोर्स के लिए स्टूडेंट्स के पास एक ग्रेड्स डैशबोर्ड होता है। इफ दे स्क्रॉल थ्रू इट, दे कैन सी द टाइटल ऑफ द असाइनमेंट and how many marks they have received. So students can see this. जहां जहां पे भी ये फीडबैक का आइकन बना है, दैट वुड मीन कि उस असाइनमेंट के लिए स्टूडेंट को फीडबैक मिला है। वो रिवीजन के लिए या कोई बहुत बड़ा एग्जाम आ रहा है जिसके लिए फीडबैक अपना वापस रिकैप करना चाहते हैं, सो दे कैन कम टू दिस डैशबोर्ड एंड सी ऑल देयर फीडबैक्स इन वन प्लेस. So this is for the students grades dashboard. Where do teachers get to see all of their grades at one place? Suppose अगर उनके सारे students का उन्हें एक साथ grades देखना है, तो teachers के पास भी grades dashboard है. So I'll come here. यहाँ पे they will be able to see overall performance. हर student का overall performance क्या है? जैसे आप देख सकते हैं रोहित का अभी तक इस term पे 40% बन रहा है. अगर I scroll through this dashboard, तो हर टेस्ट के अंदर I can see specific marks for that student. तो हम यहाँ पे scroll करके आ गए. This is our test, essay writing. हर student के against I can see उन्हें कितने marks मिले हैं. तो specific और overall performance भी teachers देख सकते हैं for students.
So like this, in the beginning I said कि offline और online assessments सब teachers हमारे platform से integrate कर पाएंगे और easily conduct कर पाएंगे. What I mean by that is कि अगर teachers ने offline कोई practical या कोई viva conduct किया है जिसमें उन्होंने या तो paper पे वो अपने marks लिख दिए हैं या तो they have created a file of it, those marks how they can integrate it into the platform is simply upload that file. उस file में student का नाम होगा, हर student के नाम के आगे उनके obtained marks लिखे होंगे. So that the teachers can do for offline assessments जो शायद online ना भी उन्होंने conduct किया हो, उसके marks वो अपने grades dashboard पे डाल सकते हैं ताकि students को अपने सारे marks ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन एक ही जगह पे दिखे, उन्हें अपने सारा फीडबैक भी एक ही जगह पे दिखे. So teachers can do that. The other thing teachers can do अपने grades dashboard से they can download all student marks जैसे अभी दिख रहा है in the form of file. So they can download this from here also. They can print it, they can upload it somewhere, अपने reference के लिए रख सकते हैं. So they can do that. Teachers are able to edit the category of exams also. जैसे अगर किसी स्कूल में this exam is called final exam और ये कुछ 40% कैरी करता है आउट ऑफ द टोटल 100. सो मैं उस हिसाब से टाइटल और वेटेज जो होता है एग्जाम्स का उस हिसाब से आई कैन एडिट देम आल्सो. ये एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स पे डिपेंड करेगा. सो टीचर्स कैन डू दिस फ्रॉम हियर. हमने स्टूडेंट्स और टीचर्स के एंड पे मार्क्स कैसे मिलते हैं, फीडबैक कैसे दिखते हैं, स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को ग्रेड्स कैसे दिखते हैं अपने, वो डिस्कस कर लिया है. सो आई जस्ट मूव ऑन and I'll just recap these points. Teachers and students have a holistic dashboard to manage their grades. Teachers can see all the grades in one place. They can also download that file. Teachers get to see the results in any display they want. अगर teachers percentage में marks देना चाहते हैं students को या letter grade में या 50 out of 100 वाले format में, तो वो भी teachers can do it. Teachers can give different weightage to assignments. जो अभी लास्ट चीज हमने देखी कि वो अपने weightage भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस एग्जाम को मेरे कोर्स में कितना weightage है. टीचर्स एग्जाम को स्टूडेंट वाइज और क्वेश्चन वाइज दे कैन चेक इट. जो हमने बिगिनिंग में देखा था कि हाउ कैन दे एक्चुअली चेक स्टूडेंट वाइज एज वेल एज क्वेश्चन वाइज एंड हाउ कैन दे गिव डिटेल्ड फीडबैक टू ईच स्टूडेंट. हमने रोहित के एंड में ये भी देखा कि रोहित को अपना सारा फीडबैक सारे असाइनमेंट्स का एक जगह कैसे दिखेगा एंड हाउ ही कैन वेरी इजीली रिवाइज एवरीथिंग. Next we are moving on to the different modules of assessments. अभी तक हमने टेस्ट या क्विज या एग्जाम जो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है, how is that conducted, that we have seen. We have also checked and given marks to students. What we can now see is holiday homework, group projects, discussion boards, offline assessments teachers कैसे conduct कर सकते हैं. Before I go on and explain, अभी तक grades वाला जो हमने बात किया है, are there any questions here? Participants, principals, अगर आपके पास कोई भी questions हो अभी तक तो you can tell me. आप chat पे भी लिख सकते हैं if you want. Okay. Is there any question? Is there any question, friends? No. समझ में आपका ऑडियो अब ठीक आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है, ठीक आ रहा है. Okay, great. So we'll just move on. I think कोई questions नहीं है, but if they come on later तो आप मुझे तब भी पूछ सकते हैं. So I'll just go ahead. अगर मैं in different assessments का if I have to give a few examples, तो how can teachers actually use this? अगर again हमने इतना तो बात कर लिया, how can they integrate offline grades to their dashboard, but how can they conduct an offline assessment? We will see कि कोई class work है या class participation test है, कोई surprise test का exams है जो teachers include करना चाहते हैं, so they can easily do it from this offline module that we have. Discussion boards teachers कैसे use कर सकते हैं कि कोई बहुत important critical concept उन्होंने class में बताया है and they want to see students कैसे आपस में discuss करते हैं, या कोई doubt clearing session है जो teachers सिर्फ अपने और एक student के बीच में करना चाहते हैं, so they can also have discussion boards for that also. So ये कुछ तरीके हैं जिससे teachers can use their platform.
Was there any question? I think someone was speaking. क्या मैं एक दो सेकेंड रुक जाऊं? If you have a question. Okay. Right. So I'll just move on. So we'll see now what are these assessment modules जो test exam के अलावा teachers conduct कर सकते हैं. So I'll come to the assignments tab here for the teachers. यहाँ पे I've created 4 different samples of these assignments also जो मैंने जिनके बारे में अभी बात की. So I'll just open them up. The first assignment you will see is कि offline submissions, offline assessments teachers कैसे include करेंगे. As the name suggests, offline submission में students को online कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वो कोई भी फाइल या कोई भी आंसर नहीं करेंगे ऑनलाइन. ये completely offline होगा जिसके मार्क्स और फीडबैक सारी चीजें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मिलेगी. कंडक्ट ये टेस्ट ऑफलाइन हो जाएगा. So I have just given the sample title. This is classwork, which is a reflection on chapter 6. इसका instruction मैंने लिख दिया है कि this grades for this will be decided on your participation in class. I'll give another example. अगर आप कोई surprise test लेना चाहते हैं students के लिए, so you will just create the title of that surprise test. उसके कितने marks होंगे, all of that you will just put it here. ये students को भी नहीं दिखेगा. If you don't publish it, so you just have to put the title and marks here. आप वो conduct करेंगे offline. जितना भी students ने score किया है, you will just put all those marks here. So this is how teachers can use the offline assessment format, जैसे practical, viva, surprise test, participation in class वाले जो marks होते हैं. This is how teachers can include those marks. Teachers can give feedback also. हमने जैसे रोहित को feedback दिया था, same format है feedback देने का. यहाँ पे feedback one-on-one हो सकता है. Teachers और students interact कर सकते हैं feedback पे. टीचर्स अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक फाइल एक एक करके मार्क्स नहीं देना चाहते हैं, तो वो एक एक्सेल शीट भी अपलोड कर सकते हैं मार्क्स की. हर स्टूडेंट के नाम के अगेंस्ट उस फाइल में जितने मार्क्स होंगे वो यहाँ पे आ जाएगा. So I'll move on to the other format. This is a group project. So teachers groups बनाएंगे students के on the platform. They will decide एक group में कितने और कौन से बच्चे होंगे साथ में. They will give an assignment, a group assignment to the students, and then students will send in their submission. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं I have created 2 groups. ग्रुप 1 का ये सबमिशन है. उन्होंने कब सबमिट किया था, when उनका ग्रेडिंग का स्टेटस क्या है, और how much grades also they have received. I can see from here, and I can give them feedback also. ये feedback, if I open up, this is a more interactive way of feedback between teachers and students. So teachers इस तरीके से ये submissions देख सकते हैं. The group submissions that is there. I'll open up this file so I can see कि group 1 ने ये submission दिया था मुझे. Side में submission देख के I can give them marks here. I can also give them feedback from here, and of course if I want to download something, I will be able to download it. टीचर्स अगेन स्टूडेंट का रिस्पॉन्सेज जो है अगर लोकली स्टोर करना चाहें तो वो फोल्डर वाइज, स्टूडेंट वाइज उनके सारे फाइल्स सबमिट फोल्डर्स डाउनलोड कर सकते हैं. तो बहुत सारे फाइल्स अगर किसी स्टूडेंट्स ने भेजे होंगे जिसमें प्रेजेंटेशन भी है, वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, या वर्ड डॉक्यूमेंट है, सारी चीजें टीचर स्टोर करना चाहते हैं, वो रियल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे तो रहेगा ही, बट दे कैन ऑल्सो स्टोर इट, डाउनलोड इट लोकली. दूसरे फॉर्मेट पे आ जाते हैं which is a discussion board. I spoke about discussion board brief में. What these discussion boards helps teachers to do, if I give a few example, जो concept discussion का मैंने बात किया था वो तो है ही. The other thing teachers can use this is, suppose कोई oral test लेना चाहते हैं teachers, जिसमें वो students को बोलते हैं कि कोई speaking या reading test है, आप अपने voice में कोई chapter पढ़ के बताइए, send me recordings of that chapter you are reading, I will give you marks on your speaking and reading skills. So students will send in their audio recording. ये audio recording they can also send to just ask something in their own voice. So students record करते हैं, platform से ही record करेंगे audio recording. There is an audio recording feature and they will send in something. One constraint that simply inform the reader about a particular topic. In order for the reader to be convinced or adequate
So in this way teachers can make sure students अपने voice में send कर रहे हैं. I can comment on the audio the student has sent me as I've done here, और मैं अपने voice में भी reply कर सकती थी students को. So there is that option as well. This is how the discussion board happens. अगर teachers को ऐसा feedback देना चाहते हैं students को कि suppose students ने एक word document भेजा है, मैंने ये discussion board एक essay के लिए रखा था, students ने अपना essay भेजा है, मैं वो essay download कर सकती हूँ. I can comment on those essays line by line, और मैं वही file students को same thread पे, discussion के thread पे भेज सकती हूँ. So that मेरा feedback mechanism जो है वो बहुत easy और efficiently हो रहा है students के बीच में, ताकि उन्हें अपनी गलतियां समझ में आ रही हैं, मेरा feedback आराम से they are going to see in the files they have sent me. So this was for this format. I'll move on to the other one. ये एक file submission format है, last one that we will be discussing. As the name suggests, ये ऐसा submission है जिसमें students will be individually sending in their submissions file के format में. तो ये कोई हॉलीडे होमवर्क हो सकता है, या रेगुलरली कोई ऐसा एग्जाम हो सकता है जिसमें सिर्फ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं जो स्टूडेंट्स को शायद फाइल बना के सेंड करना है, या आई वांट स्टूडेंट्स टू सेंड अ पीपीटी या कोई वीडियो आई वांट देम टू सेंड मी. सो उस हिसाब से आई कैन गिव दिस फाइल सबमिशन टू स्टूडेंट्स. दे विल अटैच देयर फाइल्स एंड सेंड टू मी, और मैं स्टूडेंट वाइज उनके फाइल्स देख के एक ही जगह से आई कैन गिव देम मार्क्स हियर एंड ऑल्सो फीडबैक. तो इन सारे फॉर्मेट्स में फीडबैक देना, मार्क्स का फाइल इंपोर्ट करना, उनके सारे सेंट फाइल्स डाउनलोड करना, स्टूडेंट्स को फीडबैक देके आपस में बात करना इज वेरी इजी व्हेन इट कम्स टू दीस फॉर्मेट्स. मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बट टीचर्स बहुत फ्लेक्सिबली ये फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं अपने नीड्स के हिसाब से. तो आई विल कम बैक टू द प्रेजेंटेशन. Next चीज that we will discuss is the security measures that teachers can take. जब वो अपना टेस्ट सेट कर रहे हैं, कुछ चीजें मैंने बीच में ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, जैसे क्वेश्चन ऑर्डर जम्बलिंग, या एक क्वेश्चन एक ही स्क्रीन पे वन एट अ टाइम दिखना. All those things teachers can check, but we have unique passwords, time bound tests, browser lock, question sequence randomization, amongst other things, to make sure कि students cheat ना करें. I'll just show you where teachers can do it. If you remember this creation box, these other things that you are seeing, यहाँ से teachers security measures define कर पाएंगे. So I will just give एक जो time limit होता है, हमने रोहित के context में देखा था, रोहित के पास 10 मिनट थे, तो ये 30 मिनट्स इस टेस्ट के लिए रख दिया है. वी कैन रैंडमाइज क्वेश्चन ऑर्डर. तो अगर मेरे एक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस हैं और मेरे क्लास में कुछ 30 बच्चे हैं जो एक वक्त पे अटेम्प्ट कर रहे होंगे ये टेस्ट, तो उन 30 बच्चों को सारे क्वेश्चंस अलग अलग ऑर्डर में दिखेंगे. तो हर स्टूडेंट को हर क्वेश्चन अलग सीक्वेंस पे दिख रहा होगा. I'll also randomize answer order. ये multiple choice या multiple select questions पे apply करेगा. So if I have एक question में 6 option दिया है multiple choice के लिए, तो हर student को ये options का जो order है multiple choice में ये jumbled दिखेगा. The next thing we can see is show one question per page और access code. रोहित के सेंस में वी सॉ कि रोहित को सिर्फ नेक्स्ट क्लिक करने पे एक क्वेश्चन दिख रहा था. सो दिस इज शोइंग वन क्वेश्चन पर पेज. और एक्सेस कोड होता है पासवर्ड जो टीचर्स अपने टेस्ट पे लगा सकते हैं. उसी पासवर्ड को एंटर करके स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अनलॉक देयर टेस्ट एंड वो तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे. सो टीचर्स इस हिसाब से कर सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स मैंने एक सेट्स में डिवाइड करने का स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोला ही था. तो और the other feature that we have is a browser lock जो upcoming है, जो थोड़े दिनों में रिलीज होगा. What this browser lock does is अगर student study.reallearning.in पे है, उन्होंने start assessment पे क्लिक कर दिया है, उनका असेसमेंट चालू हो गया है और टीचर ने ब्राउजर लॉक एक्टिवेट कर दिया है, तो स्टूडेंट अगर एक एडिशनल टैब खोलना चाहेंगे ऐसे तो वो नहीं हो पाएगा. रियल लर्निंग उन्हें एक वार्निंग देगा that you are moving from this tab. आपका टेस्ट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. अगर आप कहीं भी और ऑनलाइन इफ यू गो, तो स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू गो ऑनलाइन एंड लुक फॉर आंसर्स इस तरीके से. तो these security features what they do is, if I have to give you an example कि हमने सब कुछ चेक कर दिया है. यहाँ पे हमने 2 ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को बांट दिया है, दोनों स्टूडेंट्स को अलग अलग क्वेश्चन दिया है.
we also have a strict time limit going on. हर स्टूडेंट के पास 30 मिनट है. हर स्टूडेंट को क्वेश्चन ऑर्डर डिफरेंट दिख रहा है. ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट और डिफिकल्ट हो जाता है अगर क्लास में हर दो ग्रुप्स को अलग अलग क्वेश्चन पेपर मिला हो. स्टूडेंट्स को नहीं पता है कौन से ग्रुप में कौन सा बच्चा है. दे कैन ऑल्सो सी क्वेश्चन ऑर्डर रैंडमाइज्ड. उनको सारा आंसर ऑर्डर भी रैंडमाइज दिखेगा. हर क्वेश्चन एक ही पेज पे एक दिखेगा. एंड ऑल्सो वो ऑनलाइन कहीं और नहीं जा पाएंगे टू लुक फॉर देयर आंसर्स. सो इन सारे सिक्योरिटी मेजर्स को लेते हुए स्टूडेंट्स के पास बहुत कम, ऑलमोस्ट नो चांसेस है कि वो चीट कर पाए एक दूसरे के साथ. सो दीज आर सम थिंग्स दैट टीचर्स कैन सिलेक्ट फॉर मेकिंग श्योर दैट चीटिंग डजंट हैपन. और उनके सारे टेस्ट इन अ सिक्योर मैनर हो रहे हैं. So these are for the security measures. I will go through them again. There are time bound tests जिनमें fixed duration होता है टेस्ट और एग्जाम के लिए. There are start and end date time, जो सबमिशन डेडलाइन होती है. टाइम बाउंडेडनेस तो होता ही है, एक टाइमर चलता रहेगा. सबमिशन डेडलाइन भी मेक श्योर कर सकता है दैट स्टूडेंट्स एक डेट और टाइम के बाद अपना सबमिशन नहीं सेंड कर पाए. भले उन्होंने इनकम्प्लीट असाइनमेंट लिखा हो, 5 में से सिर्फ 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया हो, जैसे उनका टाइम अप होगा उनका इनकम्प्लीट असाइनमेंट ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स के पास ये सारी चीजें हैं टू टेक केयर ऑफ व्हेन दे आर अटेम्प्टिंग ऑनलाइन असेसमेंट्स और विद रियल लर्निंग. They have a password they need to put. जो browser lock की मैंने बात की, which we have upcoming, that will make sure students are not going anywhere online, they're not opening a different tab. Question order randomized, जो students को jumbled questions दिखेंगे and showing one question per page, ताकि students के पास उतना ही उस वक्त पे सिर्फ अपने questions का आंसर देने का टाइम हो और इधर उधर कुछ करने का वक्त नहीं हो. So these are things that teachers can make sure that students take care of these things. एक और चीज है which is a plagiarism testing application जो Turnitin है, वो integrate हो जाता है हमारे platform से if institutes and students have accounts. तो उससे plagiarism screen हो सकता है. अगर student ने कहीं से copy किया है आंसर word to word और teachers students का आंसर screen करेंगे उस software को लेके, उस application को लेके, so they can see कि कौन से student ने आंसर copy किया है और किसका आंसर honest और genuine है. So they can see that. And then we have teachers, the documents tab, जिसमें बहुत पहले मैंने बोला था teachers can share course material with students. And the second thing is teachers can interact with students through the bulletin board, जहाँ से वो video conferences और online classes conduct कर सकते हैं for students. So I will show you where both of these things happen. सबसे पहले we will see documents. अगर teachers documents share करना चाहते हैं students के साथ, कोई important folder of documents है या one single document है, कोई image है that वो students के learning for the purposes of learning share करना चाहते हैं, so they'll just upload it here and उसका विजिबिलिटी पब्लिक रखेंगे. पब्लिक मतलब उनकी क्लास के लिए पब्लिक, और स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली वो पोस्ट शेयर हो जाएगा. सो दे विल सपोज क्लिक ऑन ऐड बटन, यहाँ से मैं एक पीडीएफ अटैच करूंगी. आई डिसाइड कि ये पब्लिक होगा मतलब स्टूडेंट्स को दिखना चाहिए, या प्राइवेट होगा सिर्फ मुझे एज अ टीचर दिखना चाहिए, या मैं डिलेड रिलीज रखूंगी मतलब परसों ये इस टाइम पे शेड्यूल होके पोस्ट हो जाना चाहिए. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टीचर कैन डिसाइड फॉर देयर फाइल्स. वो एक डाउनलोड भी डिसेबल कर सकते हैं कि मेकिंग श्योर कि स्टूडेंट्स को अपना डॉक्यूमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हो, शायद सिर्फ वो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में होने चाहिए, स्टूडेंट्स डाउनलोड करके इधर उधर शेयर ना कर पाए, तो उसके लिए दे कैन डिसेबल द फाइल डाउनलोड ऑल्सो. सो दिस वाज फॉर द डॉक्यूमेंट्स टैब. We'll come to the bulletin, जहाँ पे जो एक फोरम है टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में to talk to one another. They can post things if they want. टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों फाइल्स अटैच करके एक दूसरे को दे सकते हैं. These can be important documents or important say there's a YouTube link that someone saw and they want to share it with their class, so they can do it here. कोई important article हो, they can share that also. Teachers और students कुछ announcement और अपना audio recording करके भेजना चाहते हैं, so they can do it from here also. टीचर्स ऑफ कोर्स एक जो डिले रिलीज है कि शेड्यूल कर सकते हैं पोस्ट की, आज मैं बैठे बैठे थर्सडे को मंडे कोई पोस्ट फ्यूचर में पब्लिश करना चाहूँ, so then I can delay my post also. Now we'll come to conferencing feature that teachers have. ये video conferencing है. 3 applications we have integrated to the platform. So these 3 teachers can use. इसके अलावा भी teachers कुछ और use करना चाहे, जैसे Google Meets है या Google Hangouts है,
तो दे कैन जस्ट सिंपली यूज देम ऑल्सो, अपना वो मीटिंग लिंक यहाँ पे डाल के स्टूडेंट्स के साथ उन प्लेटफॉर्म्स पे भी बात कर सकते हैं. दे कैन ऑल्सो कंडक्ट देयर रिविजन्स और डाउट क्लियरिंग, कोई ऑनलाइन रिव्यू है या कोई लेक्चर है, दे कैन डू ऑल ऑफ दैट फ्रॉम हियर अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म में. मैंने यहाँ पे जैसे YouTube लाइव का ऑप्शन चूज किया है, मैंने टाइटल दिया है कॉन्फ्रेंस का और मैंने ग्रेट अटेंडेंस का ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया है. What this simply means is कि अब स्टूडेंट्स को जब ये पोस्ट मिलेगा that your teacher is conducting a YouTube conference on this chapter और इसका अटेंडेंस ग्रेडेड है, so they know कि उन्हें आना ही है इस प्लेटफॉर्म में, पार्टिसिपेट करना ही है, otherwise they won't get these marks. Suppose I give 10 marks for this, so they won't get marks for this unless they come to the conference. Teachers को when they stop a meeting, जब वो मीटिंग एंड करेंगे, कॉन्फ्रेंस एंड होगा, तो उन्हें एक बहुत डिटेल्ड समरी मिलती है अपने ईमेल में, जिसमें वो देख सकते हैं हर स्टूडेंट के नाम के साथ कि रोहित joined the conference 12 seconds later, विक्रम joined the conference 2 minutes later. तो इस हिसाब से टीचर्स बहुत सारा अटेंडेंस भी मेक श्योर कर सकते हैं कि उनके पास एक लिस्ट ऑफ अटेंडेंस हो स्टूडेंट्स की. YouTube लाइव जब टीचर्स कंडक्ट करेंगे, YouTube जो प्लेटफॉर्म है उसका स्ट्रीमिंग फीचर ऐसा है कि इट्स अ वन वे इंटरेक्शन, मतलब टीचर का वीडियो दिखेगा, स्टूडेंट सिर्फ पार्टिसिपेंट्स में चैट में बात कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो पे नहीं आ सकते हैं. सो दिस इज अ वन वे इंटरेक्शन. जैसे टीचर्स YouTube स्ट्रीमिंग एंड करेंगे तो जो रिकॉर्डिंग है उस YouTube स्ट्रीमिंग का वो ऑटोमेटिकली इस बुलेटिन पे पोस्ट हो जाता है. सो स्टूडेंट्स जो जेन्युइनली नहीं अटेंड कर पाए हैं कॉन्फ्रेंस या कुछ हफ्तों बाद उस कॉन्फ्रेंस को वापस देखना चाहें कि उस पर कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था या कोई डाउट क्लियर हुआ था, सो दे कैन रीविजिट दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो. ये प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेटेड है. बाकी अगर जूम या हैंगआउट ऑन एयर या गूगल मीट यूज करना चाहते हैं टीचर्स, तो वो भी यूज कर सकते हैं, लिंक डाल के यहाँ पे जूम वो प्लेटफॉर्म के थ्रू यूज कर सकते हैं. सो दे कैन मेक श्योर कि कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रहा है, उनकी सारी क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं प्लेटफॉर्म से ही, उनका सारा डॉक्यूमेंट्स शेयर हो रहा है प्लेटफॉर्म से और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी हो रहा है, सारा इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स को प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जा रहा है. सो स्पीकिंग ऑफ अपडेट्स, the last thing we have to discuss is notifications that teachers and students have, which is email and calendar notifications. हमने रोहित के केस में देखा ही था that रोहित was getting notifications, जो बेल आइकन था उसके थ्रू immediately रोहित को notifications मिल रहा था. टीचर्स को भी सेम नोटिफिकेशन मिलेगा अगर कोई स्टूडेंट बुलेटिन पे पोस्ट करता है या उनके डिस्कशन बोर्ड पे कोई असाइनमेंट आता है या स्टूडेंट कोई फाइल सबमिट कर रहा है, तो टीचर्स गेट दैट नोटिफिकेशन. ये नोटिफिकेशंस ईमेल एनेबल्ड भी होते हैं, तो अगर कोई स्टूडेंट भले ही इस मोमेंट पे रियल लर्निंग पे लॉग्ड इन नहीं है, बट कोई इंपॉर्टेंट असेसमेंट आ जाता है या पोस्ट आ जाता है या कॉन्फ्रेंस का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो उन्हें ईमेल पे वो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे ताकि उनके फोन पे वो नोटिफिकेशन आते रहे. सो दे कैन डू दैट. ये टीचर का नोटिफिकेशन ऐसे दिखता है. एक कैलेंडर व्यू की अगर हम बात कर लें, सो बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव कैलेंडर्स. जितने भी उनके इम्पोर्टेंट असाइनमेंट, एकेडमिक इवेंट्स हैं, कोई डेडलाइन है उनका या कोई सबमिशन है या टीचर ने कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल किया है, कोई क्लास शेड्यूल किया है इन द फ्यूचर, तो सब कुछ टीचर और स्टूडेंट्स के कैलेंडर पे अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा और उन्हें दिखता रहेगा ताकि दे डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग. So we are at the end of the demo right now. If I have to put everything in a nutshell, we saw teachers test कैसे create करते हैं, क्या क्या use करते हैं questions में, students को कैसे देते हैं, students अपने answers in what ways they can give to teachers, how do students get their marks and feedbacks, how can teachers conduct online lectures and conferences and share important material with students, and attendance भी कैसे देख सकते हैं teachers. So all of these things teachers can do from our platform itself. We are at the end of the demo now. If there are any questions, then please you can ask me now. We are at the end of the session. आप अपने आप को unmute करके questions पूछ सकते हैं. हाँ. Hello. जी. Yes, I have two queries. Sure. While conducting these virtual classes, can we have the instant attendance of the student? Number one. Number two, can we restrict unwanted students? Can we cap the limited students of my class only? Even after having the link, can I just restrict all those if they want to attend this class who are not in my class list? Sure. So these are the two things that is important to understand. Okay. Sure. So I'll just take that.
फर्स्ट थिंग जो हाउ डू स्टूडेंट्स गेट टू नो दैट उनके क्लास में कॉन्फ्रेंस हो रहा है? when their teacher posts it on their bulletin on real learning. So उसी क्लास में जितने बच्चे हैं सिर्फ उनके पास ही नोटिफिकेशन जा रहा है that your teacher is starting a conference. दूसरी चीज, स्टूडेंट्स को लिंक नहीं मिलता है जब इन तीनों एप्लीकेशंस को यूज किया जाए, उनको एक ज्वाइन बटन मिलता है, तो उन्हें ये नहीं पता है कि उनका ये कॉन्फ्रेंस किस लिंक पे हो रहा है। सिर्फ प्लेटफॉर्म पे आके ज्वाइन बटन पे क्लिक करके दे गेट टू बिकम अ पार्टिसिपेंट ऑफ दैट कॉन्फ्रेंस। तो पहली बात तो ये कि सिर्फ वही बच्चे जो क्लास का पार्ट है उनके पास ही एक्सेस है इस पोस्ट का और ज्वाइन बटन पे क्लिक करने का। दूसरी चीज ये कि अगर आप YouTube यूज करें तो आपके पास जितने जो आपको सारे पार्टिसिपेंट्स दिख रहे हैं उनका नाम दिखता है, पार्टिसिपेंट्स का नंबर दिखता है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर मेरे क्लास में 24 बच्चे हैं, 24 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है तो कुछ गड़बड़ है, 24 से कम पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनका नाम दिख रहा है, सो आई कैन सी दैट और उसी हिसाब से आई कैन मेक श्योर कि कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं कौन से नहीं है। Zoom पे you have अगर आप Zoom ऑप्शन यूज करते हैं तो you have a option to restrict participants and also see the participants faces. तो आप स्टूडेंट्स को जैसे ही अपना क्लास शुरू करेंगे स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि 2 मिनट के लिए सब अपना वीडियो ऑन करो, आई वांट टू सी योर फेसेस टू मेक श्योर कि जो बच्चे मेरे क्लास में है वही क्लास के पार्टिसिपेंट्स इस कॉन्फ्रेंस के पार्टिसिपेशन में है कि नहीं। तो इस तरीके से यू कैन मेक श्योर कि जो स्टूडेंट्स आपकी क्लास का पार्ट है सिर्फ वही कॉन्फ्रेंस में है, और यू कैन ऑल्सो लॉक द मीटिंग। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 24 बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप देख सकते हैं आपके जूम में अभी 24 बच्चे आ गए हैं, तो आप उस मोमेंट पे अगर अपना मीटिंग लॉक कर देंगे तो कोई और आ या जा नहीं पाएगा मीटिंग से, so people cannot enter the meeting after your 24 students have come in. So ये सारी चीजें teachers can make sure. One thing that can we put a cap over there, the limit? Suppose we have 24 students. Those 24 students, if they want to attend the meeting even after 5 minutes or 10, they can only attend. Rest others cannot approach, cannot access that. There will be a cap of 24 or 25. I was asking about some restrictions if he wants to, do away with some of the students or something like that. So. Right. Prashant, do you want to say any more about that? Yeah, I can take it from here. His question is if he wants to restrict any of the student or wants to do away with the students during the program or the course or whatever action is being done. So he wants to know about the features of restrictions. Yes. That is important thing. Right, Mr. Pathak, the thing is, this also depends on how these platforms work. तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप लिख सकते हैं कि सिर्फ 20 बच्चे आएंगे और यही 20 बच्चे आएंगे तो ही they will get entry. But the thing is, entry मिलने के लिए भी students need to have information that their conference is starting. वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो आपके क्लास के पार्ट हैं. So no one else is getting this information. So only they can click on join and enter your meeting. और उस मीटिंग में आप पार्टिसिपेंट लिस्ट भी देख सकते हैं that there are 24 students. That we have been doing it. ठीक. No, yeah. He wants to know if there are 20 students, right? And he wants to maybe restrict 2 of them. So can you advise on that, please? So you are saying कि आप अगर सिलेक्टिव बच्चों के साथ कॉन्फ्रेंस करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं, मिस्टर पाठक? Yes, this was also the part of my query. Great. तो इसके लिए आप you can make sure that you individually send students invites then, ताकि अब आप public ये conference का information ना रखें. So you have an option to mail students, selective students about the conference to the roster. You can do it. या तो आप ये कर सकते हैं. दूसरी चीज, अगर आपने public कर भी दी है और unwanted students आ गए हैं, then what you can do is you can remove those students. So with Zoom, the option is there that you can remove participants or you can restrict them entry. या आप meeting password सिर्फ 6-7 बच्चों के साथ share कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग आ सकते हैं. So these things you can make sure. अगर आप students का group बना के, सपोज यहाँ पे अगर आप देखेंगे ग्रुप्स का ऑप्शन है, आप यहाँ पे एक ग्रुप ऐड कीजिए 6 बच्चों का और सिर्फ उनको कॉन्फ्रेंस पे बुलाइए, बाकी लोगों को पता भी नहीं चलेगा that you are conducting a conference with these students. So you can make sure that happens.
Mr. Pathak, does that answer your question? Yeah. Sure. Almost the same means that we have to design out of the options you have supplied. Out of those options, we have to design accordingly, Yes. and we have to just plan. This is the nutshell I could understand. Sure, it's completely flexible how you want to do it. अगर आप पूरी क्लास के साथ पब्लिकली शेयर करेंगे कॉन्फ्रेंस तो सब आ जाएंगे. अगर ग्रुप्स बना के या इंडिविजुअल वन ऑन वन भी आप कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो अपने स्टूडेंट्स की लिस्ट पे आइए, स्टूडेंट को सिलेक्ट कीजिए, उनको कॉन्फ्रेंस का इनवाइट भेज दीजिए. So you can also do this. No, yes, this is the thing that if we are simply having the join button is there with them, they can only push the button join and they can simply join. No link will be there, so nobody else can join. This is also good. Yeah, for just this. Join button will only be the solution. Otherwise, if the link is provided to any student, that will be passed to other, and other will. Exactly. That is why it's best कि आप conference this is good option that only join button will be there. Only join button. Yeah, you post. Okay, fine. Thank you very much. Sure. While conducting tests, if we are going to conduct this term test, how can we check unfair means? It is online. Students are sitting at home. So in that case, a student may do some unfair means. They may use unfair means. See, first of all, अगर students अपने आसपास के कुछ resources use करके if they're giving their answers, then I think it's on their conscience. But platform के चलते on our platform itself we have secured a lot of things that students के पास इतना कम time होगा सारे questions answer करने के लिए या हर चीज का इतना restriction होगा that they have very little time. एक तो online तो students जा ही नहीं पाएंगे to look for answers. तो और ऑल्सो शायद अपने पियर्स के साथ भी बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज सबको अलग अलग क्वेश्चन दिख रहा होगा. इफ मोर सो अगर उनको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिले होंगे तो वो दोनों तरीके तो उनके लिए कंप्लीटली खारिज हो जाते हैं. दे कैन नॉट चीट विद स्टूडेंट्स और फ्रॉम ऑनलाइन अगर अपने खुद नोट्स या रिसोर्सेज से यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स. सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो ऑफकोर्स ऑनलाइन हम प्लेटफॉर्म से नहीं रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे बट टीचर्स कैन स्क्रीन कॉपीड आंसर्स स्टूडेंट्स से if they see that this is that feature I understood कि वो वहाँ पर है आपका फीचर की कॉपी वो किया है तो आप उसको चेक कर सकते हो. बट when the Mr. Kamal, Mr. Kamal, hello. Voice is not. Yeah, I think he's reconnecting. जब तक Mr. Kamal comes back, are there any other questions? Any other questions to principals? I think Mr. Kamal has disconnected for some reason. कोई बात नहीं, I'm sure that we can take his questions again. Maybe we can ask him to mail us. If there are any other questions that you have, अगर आप chat पे लिखना चाहे, then you can give us more questions. या आप अपने आप को unmute करके you want to ask something, then please do so. The other thing I want to say is कि ये session पूरा record हुआ है, so I can. There was a disturbance. So I can share this recording with everyone. तो आपको ये recording भी मिल जाएगा. Maybe Mr. Prashant या Adila ji, they can share the recording with you accordingly. Adila ji, are you saying something? I think your mic is moving, but I can't hear anything. I feel shy. I'm not taking. Sorry. Okay.
हेलो हेलो सर, इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम लोगों ने मॉड्यूल भी इंटीग्रेट कर दिया है, जिसमें सारे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो कंटेंट एक्सेस कर पाएंगे एज पर डीएवी करिकुलम। तो इसमें साथ साथ टेस्ट के साथ साथ हमारा जो मॉड्यूल है वो भी इंटीग्रेटेड रहेगा, तो साथ साथ लर्न भी कर सकते हैं और सेम प्लेटफॉर्म पे आप एग्जाम भी कंडक्ट करवा सकते हैं। राइट आपके पास classteacher.com का कंटेंट एक्चुअली रहेगा। इफ आदिला जी और मिस्टर प्रशांत, इफ यू लाइक टू टेक दिस क्वेश्चन। Yeah, I believe Suman is also one of our representatives. I mean, oh, okay, I'm sorry. so, right. Yeah, content will be definitely part of the package. Right. You know, part of the thing that we are going to give it to students. तो सारे कंटेंट जो भी मैप्ड हैं करिकुलम से, सीबीएसई से, वो सारे स्कूल को इसके साथ तो रहेंगे ही। Okay. Right. Great. Thank you, Mr. Kumar and Mr. So, if there are other questions, please you can just unmute yourself and ask me. If there are no questions, I just want to ask, is it okay to conclude here? One thing, just listen to me. Sure. Yeah, as it was being told just now, that content will also be integrated with this. तो ऐसा तो नहीं है कि while the time of testing, student can also access to the content. No, so students cannot move from their assignment screen, because if they do, उनका timer चलता रहेगा, and also they will be able to restrict the tab will be able to restrict student movement, और students teachers जब documents share करेंगी तभी teachers students देख पाएंगे, students के पास हमेशा access नहीं रहेगा। वो teachers के लिए important वो है। content use करने के लिए है जी। ठीक ओके फाइन थैंक जी। Okay. So if there are no questions, I just want to ask कि क्या हम ये session end कर सकते हैं यहाँ पे? अगर आपके कोई भी questions future में भी हो, so I will write my email ID on the chat. Sorry. Inquiries. There's some problem with the audio. Yeah, I think so. Anyway, everyone, मैंने अपना email ID chat पे लिख दिया है, Zoom के chat पे, तो अगर आप you can contact me also. You can of course contact Mr. Prashant and Miss Adila ma'am. You can also contact them. हाँ जी, तो हाँ जी, थैंक यू सो मच। हम लोग बिल्कुल टच में रहेंगे और सिन्हा सर ने ज्वाइन कर कमल सर की सर शायद ज्वाइन कर लिए हैं। हेलो सिन्हा सर ने शायद ज्वाइन कर लिया है, उनका कोई क्वेश्चन था। जी कमल जी, did you had a question? आप डिस्कनेक्ट करने से पहले you had a question? Yes. जी. One question was there, if we want to conduct term 1 examination online, because the students are not coming to a school, so they will be writing their examination at home. At that time, of course, time is restriction is there, and this sequence of question will be altered. Everything is there. So all these precautions are there. But when they are writing answer, they may copy or they may use unfair means at home. This cannot be monitored. So is there any provision to monitor such things?
So right now the security features that we have, we only have those. So uske alawa what we do advise teachers to make sure they tell students before conducting a test is ki there are certain disciplinary measures they can take, but agar students apne aap kuch kahin se copy kar rahe hain, then we cannot monitor it, but teachers can screen copied answer या कोई अगर dishonest कॉपीड आंसर को तो स्क्रीन आउट किया जा सकता है जी। कॉपीड आंसर को स्क्रीन आउट कर सकते हैं आप, वो फीचर आपने दिया हुआ है। सर एक ब्राउजर लॉक का भी ऑप्शन है शायद, जैसे अभी आपने कहा ना एक कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, तो क्या कॉन्फ्रेंसिंग मोड में टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है? हाँ, so teachers can do that also if they want to। वो वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन करके स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि यू टेक अ टेस्ट, बट द थिंग इज सर व्हेन दैट हैपेंस स्टूडेंट्स के पास शायद बहुत नेटवर्क बैंडविड्थ ना बचे, उनका बहुत इंटरनेट खा जाएगा ये प्रोसेस, तो ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कम्प्लीटली। जैसे अभी आप बार बार क्योंकि अगर आपने अपना वीडियो ऑन किया है तो आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये स्टूडेंट्स के टाइमर पे बहुत इफेक्ट कर जाएगा अगर वो बार बार इंटरनेट हो रहे हैं और उनका टाइमर चल रहा है। तो अगर कोई टीचर्स ऐसा करना चाहते हैं देन इट्स कंप्लीटली अप टू देम, वी हैव केप्ट दैट ओपन फॉर टीचर्स, बट ये एक फॉल बैक हो सकता है फॉर स्टूडेंट्स, तो बट देन दैट इज देयर, बट दैट्स कंप्लीटली ओपन। हाँ चलो, तो रेस्ट क्लियर है, ये नहीं है। इसके आप जो रिकॉर्डिंग आपने की है वो रिकॉर्डिंग शेयर कर लीजिए, और किन्हीं की कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो वो कर सकते हैं। एनी क्वेरी लेफ्ट? और किसी तरह की कोई क्वेरी है? पार्टिसिपेंट्स? No queries. No queries. Everything is clear? Whatever platform is? Yes, yes. Okay. आपके सेशन में और कुछ बचा हुआ है? नहीं सर, दिस इज द एंड ऑफ इट। आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। हम रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर देंगे। देन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन द फ्यूचर प्लीज डू कम टू अस। We will just go through, we will review this recording and then only we would be able to find out some other queries if it is possible. हाँ वो कर सकते हैं। Special thanks to ARO sir for your precious time, Principal sir Mathurapur, Principal sir NTPC, Principal sir Jamui, Principal ma'am Itwanagar, Principal sir HFC, Principal sir Jamalpur, Principal sir Munger. Namaste sir. Namaste. Thank you very much. Thank you everyone. Have a good day. We will conclude. Thank you. Same to you. Thank you very much. Thank you very much, and same to you. Good day. Have a nice day, madam. Very nice presentation.